Welcome dear students of 10th standard guys. Now in this lecture we are going to talk about the third chapter, that is our circle. Okay. So now before entering into the chapter, let's try to grab some basic concepts which are required to solve the 3.1. Alright. Now very basic thing is what? Your tangent theorem. Now what do you mean by tangent guys? Whenever if I draw a circle over here, okay. Now there will be one line, okay, one external line which will touch the circle at only one point. Okay, so now here is the point P, okay, and this line I can give the name of line as line L. आपको पता है कि लाइन को नाम देने का दो तरीका है, या तो आप लाइन को एंड पॉइंट से नाम दे सकते हो, लाइन ए बी, लाइन पी क्यू, या तो एक सिंगल लेटर से भी आप लाइन को डिनोट कर सकते हो, लाइन एल, लाइन एम, सो ऑन. So यहाँ पे the line L is touching the circle at point P. That's why this line L will be referred as tangent to the circle, and this point P will be referred as the point of contact. Okay, the point of contact. Now guys, in this way there are infinite number of points which are on the circle. Alright, so I can draw the infinite number of tangents also. So if I can draw like this way, I can draw this way, I can draw this way. Alright, so these are the multiple tangents which are possible to the circle. Now the tangent theorem is what? The radius, okay, radius joined to the point of contact of the tangent will be perpendicular to the tangent. Alright, बात क्या है देखिए, यहाँ पे सेंटर है O. Whenever I will draw the radius, ठीक है, और वो radius point of contact को join करेंगे, ठीक है. So in that case the radius and the tangent इनके बीच में angle रहेगा 90 degree. Okay. Similarly I can draw more three radii. How? I can join this OC. This will be also perpendicular. I will join this OA. This will be also perpendicular to the tangent, and I can join this OP. Sorry, this will be also perpendicular. Okay, so this is what your tangent theorem. Let me read this statement for you people. A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ठीक है, tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius. ठीक है, ये परपेंडिकुलर रहेगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात भी नहीं है. पहली बात तो ये एक चीज अपने को लगेगा, ठीक है. दूसरी बात, whenever I will talk about the tangent segments, okay, what I will do, I will consider a circle over here, and there will be a point P, ठीक है, which is the external point. Now I can draw, okay, एक अगर पॉइंट हम लोगों ने पकड़ा सर्कल के बाहर, so I can draw two tangents from that one point. Okay, two tangents from that one point. Okay, how? ये हो गया एक, ये हो गया एक, इसको नाम दिया मैंने A, इसको नाम दिया मैंने B. ठीक है, so PA and PB, these are the two tangents drawn from one common external point. Okay, and in that case whenever two tangents are drawn from the one common point, so those two tangents will be congruent to each other. मतलब क्या भाई, दोनों का लेंथ सेम रहेगा. अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी तुम लोग का रहेगा 5 सेंटीमीटर. सो those two tangents will be congruent. Okay, ये चीज अपने को याद रखनी है. उसके साथ साथ see I am basically grabbing some basic concepts which are required to solve the 3.1. Okay, so ये दो चीज अपने को लगेगा. उसके साथ थोड़ा सा हम लोग भूतकाल में जाएंगे. इस ट्रायंगल के अलग अलग टाइप हुआ करते थे. ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल जहाँ पे all three sides will be equal, and in equilateral triangle all the angles will be equal to 60 degree. Always remember this. Then there was a triangle called as isosceles triangle. Isosceles triangle का प्रॉपर्टी क्या है? उसमें कोई भी दो साइड इक्वल रहेगा, कोई भी दो साइड इक्वल रहेगा. ठीक है,
and if I am considering here AB is equal to AC, alright. Now it is already given to you, right? So when your opposite sides are equal, their base angles will be also equal, ठीक है. इसका मतलब एंगल AB, देखो ये साइड है, इसका बेस एंगल मतलब ये गिर गया, एंगल ABC will be congruent to ये साइड का बेस एंगल ये गिर गया ACB, okay, and this is according to the isosceles triangle theorem, ठीक है. तो ये चीज अपने को लगने वाला है. उसके साथ साथ if you remember, two types of triangles were there. ठीक है. So there were two properties. एक प्रॉपर्टी था 30 60 90 और एक प्रॉपर्टी था 30 60 and 90. एक था 45 45 and 90, ठीक है. So always remember guys, in this case खाली मैं रिवाइज करा रहा हूँ. The side opposite to 30 degree, the side opposite to 30 degree will be half of the hypotenuse, and the side opposite to 60 degree will be root 3 by 2 times the hypotenuse. Alright, those two statements were there for this triangle 30 60 90, and there was one common statement which was for the 45 45 90 or 45 90 45. The side opposite to 45 degree will be 1 by root 2 times the hypotenuse. Okay, तो ये चीजें अपने को थोड़ा याद में रखने का है. Let's go for the very first numerical 3.1. See guys, अभी पूरा explanation and पूरा statements and all these things you can refer from our e-learning software, or you can refer in the notes also, ठीक है. So what I will do, I will explain the basic things, I will explain the steps, okay, what we need to do, okay. So we are having a very short period of time, because in that period of time, because वीडियो लंबा बना दिया तो उतना बच्चे लोग बैठ के देखने के लिए थोड़ा सा घंटा लगा करते हैं. So what I can do कि शॉर्ट पीरियड में शॉर्ट एंड स्वीट बनाने का उसको कोशिश करते हैं, एंड लेट मी एक्सप्लेन द स्टेप्स टू यू पीपल. ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग इन 3.1, थोड़ा अंदर गया, ठीक है, चलेगा, समझ लो थोड़ा, है ना. सो यहाँ पे दिस इज योर टैंजेंट, this is your point A, this is your point B. So I can say that segment AB or line AB is a tangent to circle. Now obviously this is your radius. Okay, sorry, C नाम है. So CA is your radius. So according to tangent theorem, CA will be perpendicular to the tangent. तो यहाँ पे 90 degree will be there. Okay. And what else is given to you in the following figure? The radius of the circle with center C is 6 centimeter. So your radius will be, so in the radius is already given to you. So this is your 6 centimeter. And then what else is given? Okay. उसके बाद में AB का एक लेंथ दिया है, लेकिन वो जब वो पॉइंट आएगा, ठीक है, थर्ड पॉइंट, तो वो टाइम तक हम देख लेते, ठीक है. Very first question to you: what is the measure of CAB? What is the measure of CAB? So CAB, obviously that will be 90 degree. Okay, how? Because of the tangent theorem, ठीक है. तो according to the tangent theorem क्या आएगा? Measure angle CAD will be 90 degree. Why? Because CA is a radius and AB is a tangent. Okay. एक सिंपल हो गया. सेकंड क्या पूछा है कि what is the distance of point C from line AB and Y. Okay, वेरी सिंपल. पॉइंट C का AB से डिस्टेंस पूछा है, तो इट इज ऑलरेडी गिवन यू 6 सेंटीमीटर, and that distance will be in terms of, that distance will be nothing but the radius of the circle. So what we can write over there is distance of point C from the line AB is equal to the radius of circle,
and guys always remember that distance we will consider as the perpendicular. okay, तो ये चीज अपने को 9th स्टैंडर्ड में भी था जब अपन वहां पे सर्कल ड्रॉ करते थे, देन कॉर्ड ड्रॉ करते थे. ठीक है, so distance between the center and the chord we used to take that perpendicular. So here also the distance between center and the chord, or sorry, and the tangent AB will be considered as the radius of the circle, which is equal to the 6 centimeter. okay, तो रीजन में इसको लिख सकते हैं एज द CA परपेंडिकुलर टू tangent AB. ओके, थर्ड में डिस्टेंस between A and B is given to you. This is something given to you. इसका मतलब क्या होता है? The distance between point A and point B is given to you. Point A and point B. Guys, मतलब ये क्या होता है? दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस मतलब ही दो पॉइंट से बनने वाले सेगमेंट का लेंथ. बराबर है, AB का लेंथ हो गया ना, वो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B मतलब AB का लेंथ हो गया. तो AB का लेंथ कितना दिया तुम लोग को? 6 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट दे आर आस्किंग यू फर्दर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन B and C, C and B and B and C दोनों एक ही है. ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन B and C means actually they are asking you to find the length of BC. ठीक है, so you can simply find out by using Pythagoras. How? Because यहाँ पे देखो ऑलरेडी 90 डिग्री है, तुम लोगों ने प्रूव तो किया है ऑलरेडी वो चीज by tangent theorem, right? Then this is already given to you. Okay, and this is also given to you in the third point. So you can apply the Pythagoras and you can find the value of CB. एक शॉर्ट में सॉल्व कर लेते हैं फटाफट. ठीक है, तो कैसे आएगा ये? CB square is equals to CA square plus AB square, 6 का square, don't forget to write the bracket, then 6 का square, 36 plus 36 आंसर आएगा 72. ओके, मैं इसमें गाइस दो चीजें हैं एक्चुअली मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे CB स्क्वायर रहेगा. ठीक है, सो यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 72 अगेन. ठीक है, 72 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. अभी 72 का स्क्वायर रूट कैसे लिया जाए वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ. ठीक है, उसका एक और सिंपल टेक्निक भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. देखिए 72 का स्क्वायर रूट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. उसके लिए करना पड़ेगा 72 को फैक्टराइज, 72 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. चलो मैं चालू करता हूँ 2 से. वापिस 236 आ रहा है, फिर ये 18 2 आ रहा है, फिर ये 9 आ रहा है. ठीक है, ठीक है, ओके, तो इतना अमाउंट अपने को आ रहा है, इतने फैक्टर्स अपने को आ रहा है. ठीक है, 236 2 72, देन 2 18 2 36, 9 2 18, 3 3 9, 1 3 3. ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर 72 है, ठीक है, the 72 will be replaced by all the factors. okay, so 2 into 2 into 2 into 3 into 3. ठीक है, ओके. गाइस ऑलवेज रिमेंबर ये सेम चीज, बिकॉज जब आप लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का रहेगा, क्यूब रूट रहेगा, फोर्थ रूट रहेगा, फिफ्थ रूट रहेगा, कभी भी कौन सा भी रूट रहेगा, कौन सा भी. ओके, सो यू कैन अप्लाई दिस टेक्निक. ओके, एंड व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फैक्टराइज दैट गिवन नंबर. ओके, and then replace the given number by its factors in the form of multiplication, and then you have to check for the order of surd. This concept is from the 9th standard. ठीक है, order of surd मतलब square root है या cube root है. ठीक है, तो square root मतलब यहाँ पे क्या होता है 2. ठीक है, तो square root है, इसके लिए क्या करेंगे या अगर cube root होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 3 लिखते थे, क्यूब रूट होता तो. ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे लिखेंगे 2 क्योंकि ये स्क्वायर रूट है. नाउ इस स्क्वायर रूट है तो क्या करेंगे,
अंदर के फैक्टर्स का जितना ऑर्डर रहेगा जितना ऑर्डर रहेगा उतने नंबर्स का ग्रुप बनेगा। जितना ऑर्डर रहेगा उतने नंबर्स का ग्रुप बनेगा। ऑर्डर कितना है 2, तो दो दो नंबर का ग्रुप बनेगा। ऑर्डर अगर 3 है तो 3 नंबर का ग्रुप बनेगा, ठीक है। और ग्रुप में सब सेम नंबर होने चाहिए, ग्रुप में सब सेम नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे द ऑर्डर इज 2, दैट्स व्हाई देखो सेम नंबर, 2 जन का ग्रुप बन गया, सेम नंबर 2 जन का ग्रुप बन गया, ठीक है। अगर यही क्यूब रूट होता तो 3 जन का ग्रुप बनता था लेकिन सेम नंबर का। 4th रूट होता तो 4 जन का ग्रुप बनता, ठीक है। एंड क्या करेंगे हर बार, ग्रुप में से एक जन बाहर आएगा, ग्रुप में से एक जन बाहर आएगा। यहां से एक बाहर आ गया और यहां से एक बाहर आ गया, ठीक है। और इसका कोई ग्रुप नहीं बन पाया तो वो रूट के अंदर ही रहेगा, ये गया अंदर। 2 3 6, so in this way you can solve this thing, or rather you can solve any square root, any cube root, any 4th root by this method. ओके, सो ये थोड़ा आप याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा मैं शॉर्ट टेक्निक ये बता रहा था, शॉर्ट ट्रिक में ये बता रहा था, ये मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में ये बता रहा था कि गाइस जब पाइथागोरस में इफ यू वांट टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज, इफ यू वांट टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज, ओके, एंड इफ अदर टू साइड्स आर सेम, इफ अदर टू साइड्स आर सेम, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, जो साइड है उसका लेंथ इनटू रूट 2, खत्म। राइट एंगल ट्रायंगल है। If you want to find hypotenuse, if you want to find hypotenuse, and if other two sides are same, then hypotenuse will be root 2 times the length of side, root 2 times the length of side। लेकिन ये कभी अप्लाई करेंगे जब ये दोनों साइड सेम रहेगा तभी, ठीक है। फाइन वे, तो अपने को मिल गया फिर BC का लेंथ कितना मिला अपने को, 6 root 2, ठीक है, सिंपल। उसके बाद में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, द 4th पॉइंट, व्हाट इज द मेजर ऑफ ABC, व्हाट इज द मेजर ऑफ ABC। तो पहले उसको ढूंढो कहां पे है, ABC मिल गया, ABC। उसको मैं थोड़ा भी बाहर निकालता हूं, ठीक है। तो देखिए ज्योमेट्री में ये चीज करना बहुत जरूरी है, किसी को डायग्राम से बेघर कर देना, क्योंकि इसको डायग्राम से बाहर निकालेंगे तो अपना एनालिसिस और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 है, ये 6 है, एंड दिस एंगल वी नीड टू फाइंड ना। कैसे अगर एक ठीक से देखेंगे, अगर एकदम बहुत ही ठीक से देखेंगे तो these two sides are equal, okay। So what I can do, I can use the isosceles triangle theorem, I can use the isosceles triangle theorem, okay। कुछ नोट्स में थोड़ा डायरेक्टली बताया है, ठीक है, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्टली उन्होंने 45 45 90 या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम वो यूज़ करके उन्होंने डायरेक्टली बताया, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो देखो, ये 6 है, ये 6 है, ये हो गया इक्वल। इसको थोड़ा आपको ना उल्टा, मतलब यहाँ से, मैं बोलता देखो ये मेरा आर्क है, यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या नजर आएगा अपने को कि these two sides are equal, so according to isosceles triangle theorem their base angles will be also equal, so this angle will be equal to this angle, ठीक है। ये तो 90 डिग्री है, इसका तो कुछ बात ही नहीं है। these two sides are equal, then their base angles will be also equal, so this angle will be equal to this angle, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, दोनों एंगल वैसे भी सेम है ना, तो दोनों एंगल को मैं x अज्यूम करता हूँ, so this will be my x, this will be my x and this will be also my x, ठीक है, क्योंकि दोनों भी सेम है by isosceles triangle theorem, ठीक है ना। and then I need to find the ABC, right, and then what we will do, angle find out करना है, तो what I can do is the sum of measure of all angles in any triangle is 180 degree। ट्रायंगल के सभी एंगल्स का एडिशन कितना होता है भाई, 180
डिग्री, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू, एंगल ए थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ए which is equals to 90 degree, angle B which is equals to x, this is also x, then 180. This x plus x will become 2x, 90 will go there, दिख रहा है ना, हाँ, this is your 90 again, and then 2x is equals to 90, then this 2 will go in the division ना, ठीक है, x का वैल्यू फाइंड आउट करने का अपने को। सो आंसर क्या आएगा बोलो, 90/2 मतलब भी x का आंसर कितना आएगा, 45 डिग्री। x का आंसर आएगा 45 डिग्री, which you can give to the ABC also ACB, ठीक है। तो आपने को ABC यहाँ से मिल जाएगा, राइट, वेरी सिंपल थिंग इज देयर। तो कहाँ पे सी ये स्टेप अपन डिटेल में भी लिखेंगे तो मैं तो बोलूँ अच्छा ही रहेगा। ये सामने देखो एग्जाम लिखते टाइम, ओके, वी हैव टू राइट द पेपर और वी हैव टू सॉल्व ज्योमेट्री में, पर्टिकुलरली ज्योमेट्री में हम लोग जितना सम को, जितना सोल्यूशन को एक्सपोज करके लिखेंगे कि भाई इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है, अच्छा ये ऐसे ऐसे आया है, सामने वाला उतना ही खुश होगा कि ही विल गेट टू नो कि यार इसको पता है कि ये कैसे आया है एक्चुअली। तो उतना मार्क्स अपने को प्रॉपर मिलेगा, कोई कट शट उसमें होने वाला नहीं है। सो ज्योमेट्री में द थिंग इज दैट जितना हो सके उतना पॉसिबल डायग्राम निकालेंगे, राइट, एनालिसिस वाला। सेकेंड थिंग, जहाँ पे पॉसिबल होगा वहाँ पे अलग अलग थ्योरम यूज करेंगे, रीजनिंग देंगे, इक्वेशंस लिखेंगे, पूरे सम को एक्सपोज कर देंगे, कोई छुपाने का नहीं है अपने को वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पूरा ये सॉल्व करके बताया उनको, थोड़ा टाइम जाएगा माने, लेकिन प्रॉपर भी तो आएगा, उतना प्रॉपर अपना नीट मेंटेन रहेगा सॉल्यूशन, ठीक है। So in this way you can solve your very first sum. Okay, now for the second sum क्या दिया है देखो, ठीक से देखते हैं। Okay, this circle is given to you. Here is your point O, and there is an external point which is R. Okay, so this is your R, this is your O, and these are the two tangents that we have drawn from the point R. Okay, and then see, you can clearly identify that OM and ON will be your radius, ठीक है। कुछ दिया है, अच्छा, let me read the sum for you people. In the following figure, O is the center of the circle. From point R, segment RM and RN are tangent segments touching the circle at point M and N. Okay, this is your one common external point जिससे ये दो tangents हम लोगों ने निकाले हैं। देखा है ना हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही कि two tangents drawn from one external point will be congruent with each other. Okay, अच्छा, then if OR is 10 centimeter, मतलब OR, अच्छा OR उसको ज्वाइन करना पड़ेगा पहली बात तो, ठीक है। OR is 10 centimeter given to you and the radius of circle is 5 centimeter, ठीक है। तो पहले जो दिया है वो प्लॉट करके लेते हैं अपन। यहाँ पे this is your 5 centimeter, this is your 5 centimeter and this thing, okay, this is your 10 centimeter. You can easily identify, ऊपर भी अपना राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, ट्राइंगल RNO, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल RNO, राइट एंगल ट्राइंगल, रेडियस है, ठीक है। अच्छा, ये टेन क्या है फिर, देखो ना, 90 डिग्री के सामने वाला, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड दैट इज योर हाइपोटेन्यूज,
तो OR will be a hypotenuse for both the triangles, upper triangle also and lower triangle also, ठीक है। तो ये चीज अपने को दिया है। फिर फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला वो अपन देखते हैं। What is the length of each tangent segment? क्या पूछते हैं? What is the length of each tangent segment, guys? Very simple theorem is there, ठीक है। So tangent segment theorem जो है वो अपन यूज करेंगे एंड वो क्या बोलता है, two tangents drawn from one common external point on the circle will be congruent with each other, ये theorem बोलता है। That's why Rn will be congruent with Rn, ठीक है। एंड उन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। सिंपल बात, पाइथागोरस लगाएंगे ना यार, ऊपर वाला ट्रायंगल में भी 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल है। सो सिंपली एक ही ट्रायंगल में लगाओ पाइथागोरस, ठीक है, क्योंकि लेंथ भी सेम ही है सब लोग का, इधर 10 इधर 5, तो जो ऊपर वाले के लिए कैलकुलेशन रहेगा वही नीचे वाले के लिए रहेगा। तो लेट्स अप्लाई पाइथागोरस फर्स्ट ऑफ ऑल। वी आर वर्किंग ऑन वेरी फर्स्ट थिंग to find the length of the segments, tangent segment, ठीक है। और उसके लिए मैं पाइथागोरस अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ब्रो, OR स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाला दैट इज योर हाइपोटेन्यूस, OR स्क्वायर इज इक्वल्स टू MO स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, ठीक है भाई। OR जो है दैट इज 10 का स्क्वायर, MO 5 का स्क्वायर, दिस इज योर 100 25, ये यहाँ पे क्या आएगा आपका 75। फिर आपको जो है इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 75। सो द मार्कर, सो लाइक द प्रीवियस मेथड जैसे किया था वैसे वी कैन सॉल्व। हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू द फैक्टराइजेशन, ओके। देखो इसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हैं। अभी इसको देखो और एक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स मतलब 1 4 9 जो किसी के स्क्वायर्स है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो 1 4 9 16 25 then 64 and so on, 36 49 64 144 121 सभी। So these all are your perfect squares. So what I will do, I will try to divide the inner number which is also called as radicand, 9th standard का logic, 9th standard का concept. So I will try to divide the radicand by any perfect square, ठीक है। तो 25 3s वो जा रहा है, फिर क्या होता है वहां पे, I can write it as 25 into 3, ठीक है। एंड देन ये सेपरेट हो जाएगा, √25 अलग, √3 अलग, एंड √25 का आंसर क्या रहेगा 5 तो आंसर आएगा 5√3। दो स्टेप में सॉल्व हो सकता है अगर आपके सभी परफेक्ट स्क्वायर्स बाय हार्ट है तो। और मैंने क्या बोला था कि अंदर वाले नंबर को किसी परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड करने की कोशिश करो, तो डिवाइड हो रहा है तो अच्छी बात है। 25 3s आ, फिर ये सेपरेट करो, 25 का रूट आएगा 5, √3 अंदर ही रहेगा, ठीक है। सो दिस थिंग यू कैन अप्लाई। और जैसे मैंने बताया था जो कुछ याद नहीं आ रहा है, दिमाग ही नहीं चल रहा है सर, ब्लैंक हो गया सर, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, तो फैक्टराइजेशन तो कर सकता है ना बेटा। 75 यहाँ पे बोलो 5 15 5s राइट, देन 5 देन 3, करेक्ट है। देन स्क्वायर रूट है इसके लिए, ऑर्डर कितना आएगा 2, स्क्वायर रूट है इसके लिए। एंड देन 75 को आई विल रिप्लेस बाय इट्स फैक्टर्स, सो आई कैन राइट हियर एज 5 into 5 into 3, ओके। देन जितना ऑर्डर रहेगा उतने लोगों का ग्रुप बनेगा, 2 जन का ग्रुप बना, एंड आंसर लेने के टाइम पे ग्रुप में से एक जन बाहर आएगा, जो ग्रुप नहीं बना पाया वो अंदर ही रहेगा। सो आंसर आएगा 5√3, आंसर आएगा 5√3, ठीक है। सो MR मिल गया तुम लोग को।
और जो एम आर रहेगा वही तुम लोग का क्या रहेगा, एन आर. वाई? बिकॉज बोथ आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम वन कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट. उसके बाद में व्हाट इज द मेजर ऑफ एम आर ओ. ये इंपॉर्टेंट है और ये नोट्स वाला थोड़ा एक जो एम आर एन का मेथड जो है वो वाला हम लोग देखेंगे. सॉरी, एम आर ओ, एम आर ओ. ठीक है, मैं एक बार नोट कर लेता हूँ यहाँ पे एंगल. ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा बाहर निकालूंगा. ठीक है, अभी यहाँ पे 30, 60, 90 का जो प्रॉपर्टी था वो रिवर्स ऑर्डर में यूज करने का, आपने रिवर्स ऑर्डर में यूज करने का है. कैसे? ठीक है, यहाँ पे दिस इज योर 5 एंड दिस इज योर 10. ठीक है, एंड दिस थीटा यू नीड टू फाइंड. एक्चुअली में ये अपना ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व हो सकता है, एकदम आराम से, एकदम इजीली सॉल्व हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री से. ठीक है, देखिए अभी पहले मैं बता रहा हूँ कि 30, 60, 90 कैसे यूज करें. ठीक, थीटा है, ओके, थीटा के अपोजिट साइड दैट इज योर एमओ, एंड थीटा का मतलब इस पूरे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस दैट इज योर ओ आर, नथिंग बट 10. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू ओवर हियर, व्हाट आई विल डू, जो थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसके अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस का रेशियो लूंगा. जो थीटा फाइंड आउट करना है उसका अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस का रेशियो लूंगा. ठीक है, अगर वो रेशियो आया 1/2 तो एंगल रहेगा 30 डिग्री. अगर रेशियो आया √3/2 तो एंगल रहेगा 60 डिग्री. और अगर रेशियो आया 1/√2 तो एंगल रहेगा 45 डिग्री. दिस इज वेरी सिमिलर टू ट्रिग्नोमेट्री ओनली. 30, 60, 90 को ही हम लोग रिवर्स मैनर में यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थीटा के अपोजिट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ opposite side of theta upon hypotenuse, जो कि क्या रहेगा, MO upon OR, which is equal to 5/10, which is equal to 5 × 1, 5 × 10, which is equals to 1/2. इसका मतलब द रेशियो ऑफ थीटा के अपोजिट साइड एंड हाइपो, थीटा का अपोजिट साइड एंड हाइपो का रेशियो आ रहा है 1/2. तो अगर रेशियो 1/2 आ रहा है इसका मतलब दैट एंगल मस्ट बी 30 डिग्री. दैट एंगल मस्ट बी 30 डिग्री. और इसको रीजन हम लोग लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 थ्योरम और बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 ट्रायंगल. ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 ट्रायंगल. रीजन हमेशा याद रखिए. ठीक है, तो फ्रॉम दैट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ MRO. नाउ लेट मी टेल यू द नेक्स्ट हिंट. ओके, और द हिंट फॉर द नेक्स्ट वन. उन्होंने पूछा है एंगल MRN, एंगल MRN. ठीक है, वेरी सिंपल. जैसे तुम लोग ने नोट्स में कुछ अलग दिखाया है, नोट्स में क्या दिखाया है किसी कि भाई दो ट्रायंगल लेंगे, उनको फिर सिमिलर दिखाएंगे, फिर एंगल को इक्वल करेंगे, या फिर कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, फिर एंगल को इक्वल करेंगे. तो उससे अच्छा मैं क्या बोलूँ, उससे अच्छा मैं ये बोलता हूँ कि जिस तरह से, बिकॉज द एंगल MRN, if you see carefully, the angle MRN is made up of the two angles. Okay, that is angle MRO and angle ORN. ठीक है, तो ये दो एंगल से बना है एक एंगल MRN. ठीक है, तो भाई मैं किसी तरह अगर ORN
निकाल देता हूं, ओके, ORN, ठीक है. So later what I can do, I can add angle MRO and ORN, that will give me MRN, ठीक है. Okay, and how to find then ORN? By same method. क्योंकि देखिए ना, सिंपल बात है, यहाँ पे 5 ये भी 10 है तुम लोग का, तो ये तुम लोग का हाइपोटेन्यूस हो गया. तो जैसे हम लोग ने MRO निकाला, डिट्टो वही स्टेप्स अप्लाई करके आई कैन फाइंड ORN and later I can add those two angles to get the value of MRN. Okay, वेरी सिंपल. तो ये 30 है, तो उसी लॉजिक से ये भी आपका 30 ही आएगा, एंड देन 30 प्लस 30 आपका वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री. दिस इज हाउ इट्स सिंपल, ठीक है. सो दिस वे यू हैव टू सॉल्व द सेकंड वन. ऑलराइट, नाउ इन द थर्ड सम गाइस, बहुत इजी सम है, ठीक है. और वहां पे अपने को थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड का जो कॉन्ग्रुएंसी वगैरह है वो यूज करना पड़ेगा. बट लेट मी टेल यू, देखिए कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी में क्या फर्क होता है. कॉन्ग्रुएंसी में सब साइड सेम, सब एंगल सेम. सिमिलरिटी में सब एंगल सेम एंड साइड्स के रेशो विल बी सेम, ठीक है. अगर मैं सिर्फ एंगल की बात करूं, मतलब जहां पे मुझे एंगल्स को इक्वल दिखाना है, ठीक है. सो देयर व्हाइल डीलिंग विद एंगल, या तो मैं कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प ले सकता हूं, या तो मैं सिमिलरिटी का भी हेल्प ले सकता हूं, ठीक है. बट हियर लेट्स अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन एंड व्हाई ऐसा क्यों है ये भी मैं बाद में बताऊंगा. इन थर्ड न्यूमेरिकल आई विल टेक द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है. सम पहले देखते क्या है, डायग्राम पहले समझते क्या है. Now, let me read the sum for you people. Segment RM and segment RN are two tangents of a circle with the center O. अरे यार, simple. Common external point, right? Tangents drawn from common external points will be congruent. मतलब पहले ही बता दो, पहले ही मन में रख लो कि RM will be congruent with RN, ठीक है. क्योंकि जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की बात आएगी तो इनका तो अपन हेल्प ले सकते हैं ना. ओके, ठीक है. मेन मुद्दे पे आते हैं. प्रूव दैट सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स एंगल MRN एज वेल एज एंगल MON, ठीक है. बहुत सिंपल है. क्या बोलता है, OR, prove that OR bisects angle MRN, ठीक है, as well as angle MO. इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा बाहर निकालूं, ठीक है, तो OR को बाइसेक्टर प्रूव कराना है. इसका मतलब फॉर दिस एंगल MRO should be equal to the angle ORN. Okay, MRO and ORN, अगर ये दोनों एंगल किसी तरह से आपस में इक्वल हो गए तो व्हाट आई कैन से that segment OR is bisecting the angle MRN, ठीक है. दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी है. तो ये चीज मेरे को प्रूव करना है. तो मैं कहीं पे तो बाजू में लिख के रखता हूँ कि मुझे क्या करना है कि एंगल MRO, ठीक है, उसको इक्वल दिखाना है या कॉन्ग्रुएंट दिखाना है विद एंगल ORN, ठीक है.
उससे क्या हो जाएगा, OR को MRN का बाइसेक्टर कहा जाएगा, ठीक है। सिमिलरली OR को इसका भी बाइसेक्टर दिखाना है, ठीक है। सो यहां पे दिस टू एंगल्स विल बी, अगर दो एंगल को मैं इक्वल दिखा दूं, मतलब एंगल MOR एंड एंगल RON, ठीक है, MOR एंड RON, अगर इन दो एंगल को मैं इक्वल दिखा दूं तो आई कैन से दैट OR इज अ बाइसेक्टर ऑफ MON, ठीक है। तो ये मैं लिख के रखता हूं, RON, ठीक है। तो ये दो चीजें मुझे प्रूव करना है, ठीक है, फाइन। सो गाइस, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, सो व्हाट यू विल फाइंड, दिस टू एंगल MRO and MOR, these two angles are from upper triangle and these two angles are from the lower triangle, ठीक है। तो दो एंगल अपर ट्रायंगल से, दो ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल से, तो क्या करते हैं, अगर उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो अगर मैं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं, if I will show these two triangles congruent with each other, ठीक है, then I have one secret weapon. What is that secret weapon? CACT. This is my secret weapon. What is that? Corresponding angles of congruent triangles. क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं तो उन दो ट्रायंगल में से बचे कुचे साइड भी इक्वल हो जाते हैं बाय द रीजन CSCT, एंड उन दो ट्रायंगल में से बचे कुचे एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं बाय द रीजन CACT, ओके। तो ये दो मेरे सीक्रेट वेपन है which I can use after showing two triangles congruent. So now let's struggle for showing the two triangles congruent, okay? So सिंपल चीज है, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, एकदम सिंपल चीज है। दो ट्रायंगल को देखो तुम लोग ठीक से, एक तो तुम लोग को एंगल पक्का मिल जाएगा, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम ना, टेंजेंट थ्योरम, सॉरी, ये भी 90 डिग्री रहेगा, ये भी 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। सो आई कैन से in triangle OMR and triangle ONR, angle OMR is congruent with angle ONR, ठीक है, both are 90 डिग्री। उसके बाद में you can show OM equals to ON because दोनों भी रेडियस है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में आई कैन शो OR इक्वल टू OR, व्हाई, बिकॉज इट्स अ कॉमन साइड, ठीक है। देखो यहाँ पे अलग अलग चीजों में कर सकते हो। अगर कोई बंदा सोचे सर वो MR एंड NR भी तो इक्वल है, because these two are drawn from any one point, one common point, right? So वहां पे तुम लोग का SSS टेस्ट होगा, this will be equal, this will be equal and this is your common side. So in that case SSS से भी तुम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो, ठीक है। एंड देन बोथ आर 90 डिग्री जब की बात आती है, ठीक है, सो ये बन जाता है आपका हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, ठीक है। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट कोई अलग नहीं है, दिस इज द केस ऑफ SAS वाला ही केस है, बट सिंस 90 डिग्रीज इनवर्ड दैट्स व्हाई वो स्पेशल नाम दे दिया उसको, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट।
So hence these two triangles will become congruent by hypotenuse side test. And now I will use my secret weapon. And what is that? I will use my secret weapon. What is that? By CACT. By CACT, I can show angle MRO. मतलब जो प्रूव वाला ना, वही मैं दिखा सकता हूँ. कैसे? क्योंकि ये ट्राइंगल है, उसका एक बचा हुआ एंगल, नीचे ट्राइंगल का बचा हुआ एंगल. सो एंगल MRO I can show congruent with ORN because these are the angles of congruent triangles. तो भले ही इनिशियली कॉन्ग्रुएंट ना हो, लेकिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएंगे बाय CACT. So I can show these two angles congruent and also I can show these two angles. इसको मैं दो नंबर देता हूँ, 2. एक नंबर MRO ORN, ठीक है, then MOR and NOR और RON, ठीक है, हो गया प्रूफ. And then from that I can say that OR, from this I can say the OR is bisector of MRN, and from this I can say that OR is bisector of MON. Okay, that's it for this sum. गाइस फोर्थ सम बहुत सही है. देखिए अगर अपने को थोड़ा इजी लगता रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने को वहाँ पे दिमाग चलाना पड़ेगा. थोड़ा सा दिमाग अपने को 9th स्टैंडर्ड का जो चीज़ है वो अपने को लगाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है. तो वो सम पे जाने से पहले मैं थोड़ा 9th स्टैंडर्ड का चीज़ रिवाइज कर रहा था. दैट वाज देयर इन द सेकंड चैप्टर. ओके, एंड देयर वी टॉक अबाउट द टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल. ओके, अगर आपको पता रहेगा, ठीक है, two parallel lines and one transversal. So there were different types of angles which formed by this system, the two parallel lines and one transversal. What were those different angles? Corresponding angle L shape, ये हम लोगों ने किया था 9th में. Alternate angle Z shape, and then interior angle C shape, ठीक है, ये चीजें था हम लोग का. Then थ्योरम क्या बोलता था? दो चीजें था, थ्योरम एंड टेस्ट. 2.1 में थ्योरम था, 2.2 में टेस्ट था, ठीक है. थ्योरम क्या बोलता है? if two lines are parallel then corresponding angles will be congruent, alternate angles will be congruent, interior angles will be supplementary. supplementary मतलब दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री रहेगा, ठीक है. so this is what the theorem. okay, मैं थ्योरम ही बताता हूँ. टेस्ट की यहाँ पे अपने को जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं टेस्ट चलो बता ही देता हूँ. टेस्ट क्या होता है कि व्हेन इनिशियली लाइंस आर नॉट पैरेलल, ठीक है, तभी हम लोग टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है. अभी हम लोग देखेंगे 3.2 में टेस्ट अपने को लगेगा अल्टरनेट वाला. तो वो टेस्ट क्या बोलता है पता है क्या? इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, पहले से कुछ बताया नहीं है कि भाई ये पैरेलल है या नहीं है. दो लाइन, एक ट्रांसवर्सल. इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स लाइक दिस एंड दिस L shape, if the corresponding angles are equal then lines are parallel. If alternate angles are equal then lines are parallel. If interior angles are supplementary then lines are parallel. ये हो गया तुम लोगों का टेस्ट, ठीक है. कंटिन्यू टू दिस सम ओनली. तो वहां पे अपन यूज करते हैं थ्योरम, ठीक है. ओके, let me show you the diagram. ठीक है, सर्कल है, एक टेंजेंट ऊपर है, एक टेंजेंट नीचे है, ठीक है. यहाँ पे है नाम P, ये है आपका T, सेंटर है, this is your Q, this is your
R. Okay. Now let me read the sum for you people. What is the distance between two parallel tangents? These are the two parallel tangents drawn to the circle having radius 4.5. Having radius 4.5. तो यहाँ पे देखो सिंपल क्या करेंगे, दो टेंजेंट के बीच में का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो पहले दो टेंजेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटर है आपका, ये मैं ज्वाइन करूंगा और ये मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है। सेंटर इज योर, यहाँ पे लेते हैं O, ठीक है। ये आपका सेंटर है, ठीक है। तो गाइस इन दिस केस OP विच इज योर रेडियस ना, तो ये कितना रहेगा आपका 4.5, ठीक है। देन OQ इज ऑल्सो योर रेडियस जो कि कितना रहेगा 4.5, ये भी 4.5, ये भी 4.5, ठीक है। अलग अलग मेथड से एकदम अगर शॉर्टकट मेथड अगर हम लोग यूज करेंगे, शॉर्टकट मेथड, व्हाट दे आर आस्किंग यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट। सो तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे दिस इज योर 4.5, दिस इज योर 4.5, ठीक है। तो 4.5 प्लस 4.5 तो कितना हो गया आंसर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना रहेगा दोनों के बीच में 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सम खत्म हो गया क्या? नहीं, लेकिन उसके लिए अलग अलग प्रूफ भी तो लगेगा, वो तो प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि ऑन व्हाट बेसिस वी आर डूइंग दिस एडिशन। ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो एक चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं पहले शॉर्टकट वाला ट्रिक बता रहा हूँ, फिर अपन वो सॉल्व करेंगे पूरा। OP इज परपेंडिकुलर टू दिस सेगमेंट PT, OQ इज परपेंडिकुलर टू QR, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू, एक सिंपल मेथड बता दो तुम लोग को। ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। Now this I can show by tangent theorem. ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। Later on, what I can say that tangent PT is parallel to tangent QR. उन्होंने ऑलरेडी दिया है ना, that tangents are already parallel, right? So if these are parallel, okay, and ये एंगल तुम लोग को दिया है 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो पॉइंट POQ दिख रहा है, पॉइंट POQ, ओके। पॉइंट POQ को मुझे कोलिनियर दिखाना है। क्या दिखाना है? कोलिनियर, मतलब PO plus OQ is equals to PQ. So I can use this thing ना later on, then PQ is equals to PO plus OQ, ठीक है। तो फिर आंसर डालेगा मैं 4.5 plus 4.5 is equals to 9 सेंटीमीटर, ठीक है। बट गाइस ऑलवेज रिमेंबर कि ये मैं कभी अप्लाई कर पाऊंगा जब भी मेरे 3 पॉइंट P, O and Q, these 3 points will be collinear, ठीक है। तो अभी पूरा जो भी रामायण रचेंगे वो इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाने में, ठीक है। एक बार ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिखा दिए, फिर आई कैन यूज दिस थिंग टू गेट द एडिशन एंड टू गेट द फाइनल वैल्यू, ओके। तो अभी इसका हम लोग चालू करते हैं। शॉर्टकट ट्रिक बाद में, पहले नॉर्मल से जॉब करते हैं। यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन अपने को करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन? आई नीड टू अज्यूम अनदर लाइन, ठीक है, अनदर लाइन which will be parallel to both the lines or which will be parallel to both the segments. So यहाँ पे I will name as say Q. Okay, so this OQ is another line which is parallel to both the tangents. ये मेरा कंस्ट्रक्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद में what I will do,
उसके बाद में व्हाट आई विल डू इज I will say that PT is parallel to OQ. PT is parallel to OQ. Okay. So, if lines are parallel, then interior angles will be supplementary. Interior angles will be supplementary. So, TPO plus POQ will be equal to 180 degree. Let me tell you how. ये ऐसे कुछ केस बनेगा, ठीक है. Now I am taking the advantage of this parallel lines. Okay. If these lines are parallel, means PT is parallel to OQ and PO is acting as a transversal. So TPO मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेजर एंगल TPO प्लस मेजर एंगल POQ is equals to 180 degree. Why? Because these are the interior angles formed by two parallel lines. So यहाँ पे थ्योरम यूज करेंगे अपन, ठीक है. तो यहाँ पे TPO is 90 degree and POQ is 180 degree. I hope ये आपको समझ सा रहेगा guys. फिर 90 डिग्री वहां पे जाएगा तो POQ भी कितना आएगा आपका 90 डिग्री आएगा. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भी ये भी कितना आएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है. सिमिलरली यू कैन शो एंगल QO. अच्छा Q दिया है क्या ऑलरेडी? आई एम सॉरी इसको क्या लिखेंगे अपन चलो ऐसे ले लेते हैं. Q को रिप्लेस करता है, कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा ही Q, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है. तो जैसे एंगल POS को 90 डिग्री प्रूव किया, वैसे ही आई कैन प्रूव एंगल SOQ as 90 degree by same thing because OS will be parallel to QR and OQ will be my transversal and SOQ and OQR, these are interior angles formed by these two parallel lines. So interior angles will be supplementary, मतलब दोनों का addition 180 degree रहेगा and I can get the value SOQ as again 90 degree, ठीक है. ये हो गया मेरा सेकंड स्टेप, ठीक है. इसके जैसे ही था जो ये दो स्टेप्स हो गए मेरे. उसके बाद भी मेरा थर्ड स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप क्या रहेगा, ध्यान से देखिए आप जरा. कैन यू सी दिस टी शेप फॉर्मिंग ओवर हियर? दैट इज एंगल पॉइंट POS एंड SOQ, ठीक है. POS एंड SOQ. तो ये भी 90 डिग्री प्रूव कराया फ्रॉम फर्स्ट स्टेप एंड ये भी 90 डिग्री प्रूव कराया फ्रॉम सेकंड स्टेप. तो ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है. तो दोनों का एडिशन कितना होगा? एडिशन होगा दोनों का 180 डिग्री. मतलब ही एंगल POS एंड SOQ, these are angles in linear pair. These are angles in linear pair, ठीक है. And that's why from that property of angles in linear pair, I can say point P, O and Q, these are collinear points. These are collinear points. तो यहाँ पे angles in linear pair को उल्टा यूज करना है, उसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में यूज करना है. What I will do? दोनों को 90-90 प्रूव करने के बाद I can write मेजर एंगल POS प्लस मेजर एंगल SOQ is equal to 90 plus 90, that is 180 degree. Hence angle POS and SOQ will be angles in linear pair. T shape भी आपको दिख रहा है यहाँ पे. Those will be angles in linear pair and hence we can say point POQ are collinear points. And एक बार POQ को collinear दिखा दिया, then I can use that thing. क्या? That is PQ. ये प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट था ना. और उसके लिए क्या प्रूव किया कि भाई ये दो एंगल जो है वो एंगल्स इन लीनियर पेयर है. और उसके लिए क्या किया, दोनों का एंगल निकाला 90 डिग्री, उनको ऐड करके बताया कि भाई ये 180 डिग्री आ रहा है एडिशन, ठीक है.
So PQ is equals to PO plus OQ. PO plus OQ. Then I can say 4.5 plus 4.5 equals to 9 सेंटीमीटर. तो इसके लिए डायरेक्ट नहीं बता सकते, इतना पूरा चीज अपने को करना पड़ेगा. तो इसमें एक्चुअली 3 स्टेप है. ठीक है, पहला स्टेप है ये 90 डिग्री प्रूव करेंगे. दूसरे स्टेप में सेम लॉजिक से ये 90 डिग्री प्रूव करेंगे. एंड तीसरे स्टेप में दोनों एंगल को एंगल्स इन लीनियर पेयर प्रूव करेंगे. ठीक है, उसका प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके बोलेंगे P O Q are co-linear points and then I can use this thing. Okay, that's it for the 3.1. Thank you so much.